السلام علیکم. بھولے بسترے گانے اور میل باکس میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر عروبہ اور میرے ساتھ موجود ہے میری ٹیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویئرز، جیسے کہ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے بتایا تھا کہ ماہ رمضان میں ہم بھولے بسترے گانے میں گانے یا اس سے ریلیٹڈ فلمیں ڈسکس نہیں کریں گے بلکہ ہر بار ایک نئی کتاب ہوگی. تو آج کس کتاب پر بات کریں گے یہ آفتاب صاحب سے پوچھتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ٹائٹل بھی یہ ہونا چاہیے بھولی بسری کتابیں، کیونکہ ہمارے یہاں کتابیں بھی بالکل ہی جو ہے نا بھولی بسری ہیں. لوگ نارملی کتاب کا تذکرہ پتہ نہیں، مطلب معاشرے میں کوئی تغیرات ایسے رونما ہوئے ہیں، لوگوں کا ذوق، لوگوں کا میلان کتابوں کی طرف کم ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ بتدریج کم ہوتا چلا جا رہا ہے. فلموں کی طرف، سیریلز کی طرف، OTT کی طرف بہت زیادہ ہے. تو آج ایک کتاب، ایک بات ایڈ کروں یہاں. جی سر. ایک بک سیلر سے میں نے پوچھا کہ بیسٹ سیلر کی آپ کی ڈیفینیشن کیا ہے، جی، یعنی ایسی کتاب جو بہت بکی ہو. تو کہنے لگے کہ ایک سال میں اگر 1000 کاپیاں بک جائیں تو ہم اس کو بیسٹ سیلر سمجھتے ہیں. جسٹ امیجن. آپ امیجن کریں کہ کتنا لو بینچ مارک ہے. سر، اس میں 24-25 کروڑ کے ملک میں 1000 کتاب اگر بک جائے ایک سال میں تو وہ بیسٹ سیلر کہلاتی ہے. تو لوگوں کی کوشش ہے، کامچور بھی ہو گئے ہیں کہ اس کتاب پہ اگر کوئی فلم ڈرامہ بنا ہے تو وہ دیکھ لیں، پڑھنی ہی نہ پڑ جائے. چلے ایون یہ بھی ٹھیک ہے کہ چلے اس کے اوپر کوئی ڈاکیومنٹری بن گئی، فلم بن گئی، نہیں، ڈرامہ. لیکن کتاب پڑھنے سے جو آپ کی ووکیبلری، جو آپ کی امیجنیشن، یہ ساری چیزیں اسٹرانگ ہوتی ہیں. بہت کچھ ہوتا ہے. اس کا کوئی مقابلہ نہیں. اب کہتے ہیں نا کہ ہمارے بچوں کو اردو نہیں آتی، ہوئے ہوئے حالانکہ ہم بولتے ہیں. بھئی آپ جس طرح کی اردو بولتے ہیں نہ ہی بولنے تو اچھا. نہیں، میں نے تو بولتے بھی نہیں دیکھا. ہمارے جو گھروں میں جس طرح کی اردو بولی جاتی ہے وہ آدھی سے زیادہ انگریزی ہوتی ہے، تھوڑی بہت پنجابی ہوتی ہے، جو بچا کھچا گیپ ہوتا ہے وہ اردو برائے نام پورا کر دیتی ہے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بچے کو جو لینگویج آپ نے سکھانی ہے نا، یا تو 24/7 اس کے ساتھ بہت اعلیٰ پائے کی وہ لینگویج بولی جائے. جس طرح ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ بہت اعلیٰ پنجابی بول رکھی ہے، اور میرا پنجابی محاورہ، اردو یہ بہت بہتر ہے اپنے پیرنٹس کی وجہ سے، پھر ماحول کی وجہ سے بھی. اور اس کی اگزامپل بڑی اچھی ہے. جو برٹش کینیڈین بچے ہیں وہ سکولز اور فلمز کی وجہ سے پرفیکٹ انگریزی بولتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک ٹپکل پنجابی بولتے ہیں. نہیں تو انگریزاں دے بچے نے انہوں نے انگریزی بولنی. انگریزاں دے نہیں، ساڈے یار جڑے پاکستانیوں کی بات، جو یہاں سے وہاں تم سیٹل ہوئے. سوئے رہتے ہو ہر وقت. ایک تو تیرا منہ دبانے ورگا، وہ تو ستا رہنا. اٹھ نیم خوابیدہ ہدوانا. ادھورا جہا نیند بھی آن ڈئی ہے دوانا. اچھا جی، بات ہو رہی تھی بچوں کے اردو بولنے پہ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਬੋਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ. ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਬੱਚਾ ਅਸਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਦਾ. یہ بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہم نے جب لڑائی کرنی ہو، گالی دینی ہو، بکواسیات کے زمرے میں جو چیزیں آتی کہتے ہیں ہیں اثر ہی تب ہوتا ہے جب پنجابی میں وہ کہتے ہیں. پنجابی میں، اور صرف ادروائز دکھاوے کے لیے وہ اردو. بات ہو رہی ہے پڑھنے پڑھانے کی. آپ کی وکیبلری کبھی بن ہی نہیں سکتی جب تک آپ نان سٹاپ یا تو ایک زبان بولتے چلے جائیں. وہ آپ 20% وکیبلری اکٹھی کریں گے. جب آپ پڑھ کے پک کریں گے 80% پک کریں گے اس میں سے. اگر آپ نے پڑھنا ہی نہیں تو پھر بھول جائیں. تو اس پہ بڑی بے شرمی سے کہہ دیتی یار یہ کیا ہوتا ہے، ملاحظہ ہوتا ہے یا ملاخطا ہوتا ہے. یعنی اب بھی تم ملاخطا کہتے ہو. اس سے ویسے آج کے سکولز کا بھی قصور ہے جہاں پر بچوں کو اردو بولنے دیتے ہی نہیں ہیں کہ الاؤڈ نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ کچھ پیرنٹس ایسے بھی ہیں جو فخر سے بتاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی اردو بہت خراب ہے. اچھا، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. میں نے آج کل کی جو چھوٹی والی جنریشن ہے نا اس کو اردو بولتے دیکھا ہی نہیں. یہ شرم آنی چاہیے جب آپ یہ کہیں کہ جی اردو بڑی خراب ہے ان کی. وہ یقین کریں ان کی انگریزی بھی بڑی خراب ہے، آپ کی اپنی خراب ہے، اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ غلط انگریزی بول رہے ہوتے ہیں. ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰਾ ਉਰਦੂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ. ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈਵਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ. ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਆ ਜੋ ਕੁਲਫੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਹੇ ਠੰਡੀ ਠਾਰ कुल्फी खाने वाली करने वाली कुल्फी. तो ये भी सारा कुछ उर्दू में होना चाहिए ताकि बच्चे को माहौल उर्दू का दिया जाए.
फिर वो बोलेगा उर्दू। ये इसने क्या हरकत की थी, मैं फोन देख रहा था अपना। वो कुल्फी का मजा ले रहे थे उर्दू में। सर सारी चीज़ें उर्दू ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣੀ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮ ਅੰਡੇ ले लो, गर्म अंडे ले लो, हाफ बॉयल ले लो, कंबल उबले हुए। हाफ बॉयल कहाँ से उर्दू है बताइए। ओ भाई बात सुनो, ये बात नहीं हो रही जी जी कि उर्दू बोले, अच्छी उर्दू बोलनी चाहिए। ये उर्दू तो माएँ भी बोलती हैं, अब आपको पता है बच्चों के साथ वो बोलती है उर्दू है। सर ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਰਦੂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੋਲਦੇ, ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਥੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। नहीं नहीं, ये और चीज़ है, बात हो रही है पढ़ने की, जी कि अगर आप पढ़ेंगे ना जी अच्छी उर्दू लिखी हुई, तब जाकर आप महसूस करें यार ये लफ्ज़ बार बार आता है, इसका नंबर 1 तलफ़्फ़ुज़ क्या है, नंबर 2 इसका मतलब क्या है, जी नंबर 3 इसकी इमला क्या है। लोग ऐन और अलिफ का इस्तेमाल ही नहीं जानते। जो ऐन से लफ्ज़ है अलिफ से लिख रहे होते हैं, जो अलिफ से है वो ऐन से लिख रहे होते हैं। जे का, ज़्वाद का, ज़ाल का कोई फ़र्क किसी को नहीं पता। हमारे बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी कालम नवीस भी गैज़ो गज़ब जो है वो अक्सर गलत लिखते हैं। हाँ जी, गज़ो गज़ब बिल्कुल। सर ਤੁਸੀਂ ਤੇ हत्तुल ਬਿਲਕੁल विसाल लिख कर दिखा दे मैं मान जाऊँ, हत्तुल इम्कान नहीं लिखा जाता। बल्कि ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਤੀ ਮਾਨਨਾ, ਤੁਸੀਂ 3 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਪ ਗਏ ਹੋ ਵੀ 3 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਗਏ। नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇਖਿਆ नहीं। सारे से मोबाइल देखा थी, मोबाइल से बोल के कहता है डोर क्लोज को उर्दू में क्या कहते बेटा हैं, वो और एक फोन और फौरी बात, ताज़ा। वो एक और बात है, तुम लोग तो चैंपियन हो कि कुछ ना पढ़ने के बावजूद कुछ ना कुछ कर चुके हो। ओह। वो जिनके ऊपर पैसा ज़ाया किया जाता है एवरी मंथ, हज़ारों बल्कि लाखों में, वो क्या कर रहे हैं? क्या उर्दू है उनकी, क्या अंग्रेजी है उनकी, इवन पंजाबी नहीं अच्छी आती उन्हें भाई। वो प्रेफर करते हैं रोमन इंग्लिश में लिख दो तो पढ़ा जाएगा, उर्दू तो पढ़ी नहीं जाएगी। इंग्लिश है तो मिंग्लिश है, स्क्रिप्ट है तो वो रोमन है, Yes. हर चीज़ बास्टर्डाइज्ड है। अब फेसबुक पे कुछ लोग ना रोमन इंग्लिश में लिखते हैं और हालांकि पढ़े लिखे होते हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे होते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ यार दिस इज़ अ टॉर्चर, या तो उर्दू में लिखो या अंग्रेजी में लिखो, प्रॉपर कोई लैंग्वेज यूज़ करो ना। जी हाँ। ये पता नहीं क्या है ये कि आप रोमन में लिखेंगे। अपने फहीम साहब से पूछ लीजिए, आपके प्रोड्यूसर हैं जो, मुझे लंबा लंबा मैसेज रोमन में लिखा दूँ, खुदा का नाम है, इससे बेहतर है कि मुझे वॉइस नोट दे दिया करो। ये रोमन पढ़ी नहीं जाती इस तरह करके, सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो भी लोग चूँकि रोमन है, चूँकि इसलिए स्पेलिंग की और इन चीज़ों से बिल्कुल बेनियाज होकर बोलते हैं। खैर मेरा ध्यान बार बार किताब की तरफ जा रहा है कि हम किताब से बिल्कुल नाआशना हो चुके हैं और टाइम भी बहुत कम होता है। बशमूल मेरे, मैं बहुत शौकीन था किताब पढ़ने का, लेकिन अब मैं महसूस करता हूँ कि लाइफ का पैटर्न जिस तरह का हो चुका है ना, ये गनीमत है कि आप चंद सफ़े पढ़ लिया करें, 10-12 सफ़े, वही बहुत है। उसमें मेरे ख्याल में तरीका ये है कि आप इंडेक्स पे चले जाएं, जो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगती है जी। वो चीदा पढ़ लें। खैर मैं तो पहले भी यही करता हूँ। एक 650 सफ़े की किताब है, 650 हाँ जी, सफ़े और FSJ ने मुझे कहा कि तुम क्यों नहीं पढ़ रहे। मैं कहा सर ये किताब पढ़ने वाली इतनी ज़ख़ीम किताब, ये तो सर पे मारने वाली किताब है। उन्होंने कहा यकीन करो मैंने भी इसके 92 सफ़े पढ़े हैं और उसमें था ही 92 सफ़े का मवाद, बाकी कुछ भी नहीं। गैर ज़रूरी, वो हमसे मुताल्लिक नहीं है। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो पूरी किताब की ज़ख़ामत पे मत जाएं। ये ठीक कह रहे, इंडेक्स देखें और आपको समझ आ जाए ये मेरी चीज़ है पढ़ने की, कच्ची पेंसिल से टिक कर लें उसको। यस। और अगर आपकी मिल्कियत है तो जाए मेरी तरफ से जिस चीज़ से मर्ज़ी कर लें और उतना पढ़ें। मज़ीद कुछ देखना चाहते हैं उसी से मुतल्लिक, तो एंड पे दिया होता है बिब्लियोग्राफी। यस। बिब्लियोग्राफी देखें कि यार इस पर किसी और बड़े मशहूर आदमी ने कुछ कह रखा है, वो भी पढ़ लें। अब मैं पढ़ता हूँ, जैसे कल आपने एक लेटर पढ़ा था, वो हमें कमेंट से ज़्यादा लेटर था जिसकी वक्खियों में जी। दर्द शुरू हो गई थी, हंस हंस के चाचे बूटे पे। उसका उसलूब इतना शानदार था, उसका एक्सप्रेशन इतना अच्छा था कि वो पढ़ने को दिल चाहता है। फ्रॉम ईस्ट पंजाब। फ्रॉम ईस्ट पंजाब, ऑब्वियसली पंजाबी एक्सप्रेशन तो उधर से ही आएगा। हमारे यहाँ तो आपको शाज मिलता है जो पंजाबी लिखने वाला, और पंजाबी किसी की सुगरा सदफ का फ़ोन आ जाता है, मुझे अच्छा लगता है कि चलो चंगी पंजाबी खूबसूरत गुफ्तगू सुनने को मिलेगी। बड़ा मीठा बोलती हैं, बहुत मीठा और बड़ा शानदार। हालांकि पंजाबी का कॉन्सेप्ट साडा है कि जे लठ मारनी हो किसी सिर सोटा मारना हो वो पंजाबी च मारो। पंजाबी बड़ी धीमी तो बड़ी मिठी जुबान है। सर आज की किताब कौन सी? किताब तो एनर्की, हम पहले कर चुके। विलियम डालरिम्पल, जी। कमाल की किताब है, खूबसूरत किताब। तो बस साल में एक बार चले इन किताबों का तज़किरा ही सही, ये मैं करता हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है
हम पहले मेल बॉक्स की तरफ चले जाएं, जी सर, या जैसा आप चाहते हैं? क्या एक ही किताब पे बात। पहले बात कर लेते हैं। किताब जो है ये सन 2019 में छपने वाली विलियम डालरिम्पल की इंतहाई खूबसूरत किताब है, और इसमें सबसे अहम बात जो इसकी हाईलाइट है वो ये है कि एक शख्स जिसका दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं इस खत्ते के साथ, ही केम ऑल द वे फ्रॉम स्कॉटलैंड, और आके वो तारीख लिख गया है जो यहाँ के मुअर्रिखीन को ना नसीब हुई ना तौफीक हुई। ये वाकई लम्हा फिक्रिया है हमारे हिस्टोरियंस के लिए, जी, इंडिया के भी और पाकिस्तान के भी, क्योंकि हमारे यहाँ वो फ्रीडम वाला माहौल शायद नहीं है कि जो एक वेस्टर्न आता है। अब इवन फ्रीडम एट मिडनाइट देख लीजिए, पार्टीशन पे सबसे पॉपुलर किताब है वो, जिसका दर्जनों ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है। बहुत अच्छी किताब, Yes. बहुत अच्छी। अब मानते नहीं है हमारे कुछ दोस्त, या क्योंकि बात चीज़ें लठ की तरह लगती हैं हमारे सर पे, लेकिन लैरी कॉलिंस और उसके साथी ने, क्या नाम जी, है? फ्रेंच उनका था, लेपगे। लेपगे, क्या कमाल की किताब, खूबसूरत किताब। और अगर कुछ लोग उससे मुत्तफिक नहीं हैं तो उनको चाहिए था फिर उसका जवाब लिखते। वो 1975 में आई थी, अब तक कोई जवाब नहीं आया, किसी ने गलत साबित किया हो कि जी आपने ये बात गलत लिखी है इसमें। नहीं, वो एकदम कालीन के नीचे डाल दी गई यस, कि मतलब उसका ये फिक्रा बड़ा खूबसूरत फिक्रा, वो फिक्रा कम और एक बहस है जो उसने छेड़ी है कि मैं इस पे बहुत हैरान हूँ कि एक मजहबी गांधी एक लिबरल और सेक्युलर स्टेट की बात कर रहा है, और एक सेक्युलर जिना मजहबी रियासत मांग रहा है। ये Yes. कैसा शानदार एक सवाल उठाया था उसने, इसका जवाब देना चाहिए था। बिल्कुल। ਤੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਲਹਿਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਰਦੂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਾਂ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਮੈਨੇ ਕਹਾਂ ਰੱਖ ਦਈਏ। अच्छा, किताब च पैसे रखते होंगे। ਤੂੰ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਮਾਮਾ ਨੋਟ ਰੱਖਣਾ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਓਏ? ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ? ਇੱਥੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮੈਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, अच्छा, ਉਹ ਤਵੀਦ ਮੁਬਾਰਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਸਫ਼ੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਲਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਫ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। बस ये काम बड़े अच्छे कर लेते हो तुम। ਸਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਨਾ। वैसे कभी शर्म नहीं आई कि तुम पढ़ने का शौक भी नहीं रखते? ਬਸ ਸਰ ਕਦੀ ਗਰੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾਤਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। इस किताब में मुगलिया जवाल के असबाब हैं कि जब रियासत, ख़ानदान, डायनेस्टी, असबियत कम होती है, उसमें डिटेरियोरेशन आती है, जब आपका फोकस डिफोकस में कन्वर्ट होने लगता है, जब आपका नस्बुलैन कुछ और हो जाता है। और मैं तो समझता हूँ कि मुगलिया जवाल अकबर के फ़ौरन बाद शुरू हो चुका था, और यही वो टाइम है जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई। जहांगीर ने क्या किया है, आपको ये जो जहांगीर नज़र आता है ना, ये नॉवलों में, अफसानों, कहानियों और फिल्मों में नज़र आता है। फैब्रिकेटेड है। सारा फैब्रिकेटेड है, पैसे दे के लिखवाई गई तारीख है। और डॉक्टर साहब हमारे यहाँ स्कूल में मुझे याद है मुगलिया सल्तनत के ज़वाल के असबाब पढ़ाए जाते थे, और वो 8-9 रीजंस होती थी और रट्टा लगाया जाता था। कोई एक्सप्लेन नहीं करता था कि बस आपने रट्टा लगा लिया, एग्ज़ाम पास करना है। हालांकि तारीख़ तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको समझना चाहिए, और जब तक आप तारीख़ को समझेंगे नहीं आप आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा शख्स जो इस कदर बला नोश हो, जो नॉन स्टॉप शराब पीता हो, उसने हुकूमत क्या खाक चलानी थी। अब इस पे बड़ा उसको एक लेवरेज मिल गया, उसको बड़ा अलाउंस दिया जाता। चलें जी, उसकी बेगम चूँकि बड़ी जहांदीदा थी, एक बड़ी ज़ीरक खातून थी, वो मजबूरन बेचारी चला रही थी, उसकी कोई ट्रेनिंग थी भला? वो मजबूरन पीछे बैठ के कि भी ये तो हर वक्त पड़ा रहता है, मरा रहता है, तो मैं ही कुछ सिलसिला, चूँकि मुझे पता है कि कौन सी चीज़ हमें सूट करती है और कौन सी नहीं करती, तो वो अपने डायनेस्टी बचाने के लिए, अपना घर बचाने के लिए सब कुछ करती रही। सरहदों पे जो कुछ होता था उसको कुछ इल्म नहीं होता था। और ये भी अफसाना है कि वो एक बड़ी शानदार मलिका थी। लोग तो उसको कैथरीन दी ग्रेट के साथ मिलाते हैं, लोग तो उसको यहाँ की मलिका विक्टोरिया कहते हैं। तो भाई इस तरह नहीं होता। आखिर उसी की नाक तले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना,
اگر وہاں پر کوئی والی وارث ہوتا, کوئی سائیں قسم ہوتا اس ادارے کا جس کو اسٹیٹ کہتے ہیں, جس کو حکومت کہتے ہیں, تو یوں کھل کھیلنے کا موقع نہ ملتا کہ 1500 بندوں کے ساتھ اس نے پورے کے پورے ہندوستان پہ راج کیا. تو ڈالرمپل بڑی خوبصورت بات جو اس پوری کتاب میں کرتا ہے نا, وہ یہ کہ آپ کے اندر دراڑیں کیسے پڑتی ہیں. کیونکہ آخری دور دیکھ لیں نا آپ مغلوں کا, کہ جس طرح جوتوں میں دال بٹتی رہی, گو کہ پہلے شروع ہو گیا تھا سلسلہ. یہ حیرت ہے مجھے کہ اورنگزیب نے آ کر کس طرح سہارا دے دیا, کیونکہ اس کے دور میں بہت بڑی سلطنت تھی, بہت بڑی. یہ پوری تاریخ پچھلے 5000 سال کی اگر آپ دیکھیں نا, تو اورنگزیب کا جو دور تھا نا, اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جس پر ایک حکمران کا پرچم نہ لہرایا گیا ہو. اس سے بڑا صرف ایک ایکسپیرینس تھا, اور وہ کئی 100 سال پہلے تھا, اشوکا کے دور میں. اشوکا بلا شرکت غیر نمبر 1 تھا. اس کے دور میں جس طرح ایک پرچم تلے پورا سب کانٹیننٹ تھا, بلکہ سب کانٹیننٹ کے ارد گرد کا علاقہ بھی وہ زیر نگیں آ گیا تھا. وہ بڑا باکمال آدمی تھا, اور شاید اس کی قسمت اچھی تھی کہ تاریخ میں اس نے نمبر 1 کا رول لینا تھا. تو مجھے جو چیز حیران کرتی ہے نا, وہ ہے کہ اکبر ایک بہت تگڑا بادشاہ, بہت لاجواب ایڈمنسٹریٹر, حالانکہ وہ بھی آلموسٹ ان کی طرح چٹان پڑ تھا. اچھا جی. جی, اس کے باپ کو تو بیچارے کو موقع ہی نہیں ملا اس کو پڑھانے کا, جلا وطنی میں رہا, پیچھے پیچھے دشمن, آگے آگے وہ. اس کی تو پیدائش بھی جلا وطنی میں ہوئی تھی, اور فرار کی, ہجرت کی کیفیت میں. لیکن اس شخص نے, آفرین ہے کہ اس نے لوگوں سے سیکھا, سن سن کے, سمجھ سمجھ کے. 14.5 سال کی عمر میں یہ ایسٹ پنجاب کا ایک وہ کیا ہے گاؤں جہاں پہ اس کی تاج پوشی کی گئی تھی, کلانور, غالباً اٹ واز کلانور, جہاں سے اپنے یہ راؤ رشید تھے, ان کی کتاب میں بڑا تذکرہ ہے کلانور کا. ہیو یو ریڈ؟ جو میں نے دیکھا, I've heard a lot about it. منیر احمد منیر نے کی ہے. اگر ہو سکے نا تو انہی دنوں میں جو میں نے دیکھا پر بھی گفت و شنید کریں, کیونکہ ہماری جو کرنٹ پالیٹکس ہے نا, وہ جن کمزور بنیادوں پر قائم ہے ان کا تذکرہ کیا ہوا ہے راؤ رشید نے. تو اس کی تاج پوشی کر دی گئی بہت کم عمری میں, لیکن اس نے پھر بھی سیکھا, اور اس نے 50 سال حکومت کی, نصف صدی, 49 years and some change. لیکن اس کے بعد اس کا نالائق بیٹا, بڑا رومانٹک بیٹا, کیونکہ ہمیں دلیپ کمار نظر آتا ہے نا جہانگیر کی شکل میں, ہم کیسے اس کو ناپسند کر سکتے ہیں. اور وہ 6 ماہ بھی حکومت نہ کر سکا. جی 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 جی, کہتا ہے ایک شراب کی بوتل اور آدھا سیر گوشت, میرا پورا دن گزر جاتا. یہ کتاب میں لکھتا ہے, یہ نہیں کہ کوئی اور یہ بات کر رہا, وہ خود کہہ رہا ہے. تو اس کے جہانگیری میں پھر اس کے بعد بھائی صاحب جو تشریف لائے, انہیں پیسہ ضائع کرنے کا پتہ نہیں کیا کریز تھا کہ اس کو معمار اعظم کہا جاتا ہے مغلیہ دور کا, کہ اس نے جو جمع پونجی تھی وہ اٹھا کے اپنی بیوی کے مقبرے پہ لگا دی, کہ جی تاج محل تعمیر کیا. انی اٹ لگی اوتھے, انی اٹ لگی اوتھے. وہ اٹ تو زیادہ ہوندے تھے, سنگ مرمر, مرمر لگا اوتھے. یہ وہ اٹنو بھی سنگ مرمر ہی کہتے ہیں. سنگ مرمر بھی ہے, سنگ سرخ بھی ہے اس میں. اور اس پہ ساحر نے بڑا مشہور شعر کہا ہے نا, جی پوری نظم کہی ہے, کہیں اور ملا کر مجھ سے. ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. کیا کہنے, یہ تو غریبوں نے چاہیے نا اپنے اپنے حصے تے پتھر لا لین اوتھے. او بھائی کوئی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی ہوتی, این اس دور میں آکسفورڈ کیمبرج بن رہی تھی, ہارورڈ بلکہ اس سے پہلے بن چکی تھی. جی میں دور وہی ہے. تو آج دیکھو انہوں نے آگے لگایا ہوا آپ کو. وہ کہتے ہیں نا, ریڈنگ نیشن از اے لیڈنگ نیشن, اور ہم تو بہت دور ہیں پڑھنے لکھنے سے. اور اسپینڈنگ نیشن از اے ڈیفینڈنگ نیشن. ہم صرف ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں, ہر وہ نہیں یار, دفاع میں, اپنے دفاع میں لگے رہے آپ, پیرانویا رہے ہر وقت, ایک ڈر رہے کہ یار ہمارا دفاع مضبوط ہونا چاہیے. خیر, پھر جو اس بندے نے جو کمال کیا ہے نا, برطانوی ہونے کے باوجود, یہ شاید اسکاٹش تھا, وہ اپنی تھوڑی سی باعث اس نے دکھا دی لارڈ کلائیو کے خلاف, کہ یہ یہاں پر
उचक्का गिरी भी करते रहे हैं, डकैतियां करते रहे हैं, यहाँ से उठा के बड़ा कुछ ले गए। लॉर्ड क्लाइव उस दौर का इंतहाई करप्ट अंग्रेज समझा जाता था, सबसे बड़ा लैंड माफिया उस दौर का। सब वैसे बात तो ठीक है, सब कुछ तो ले गए यहाँ से। आधा लंदन उसने वहां जाकर खरीद लिया था, किसी ने नहीं पूछने की जहमत गवारा कि भाईजान कहाँ से आए ये पैसे। मेरा ख्याल है लेकिन हाँ प्रोसिक्यूट हुआ वो, प्रोसिक्यूट हुआ था वो, क्योंकि ये हमारा मुल्क थोड़ी है कि साफ बच जाता, वहाँ प्रोसिक्यूट हुआ था। ये इनका अंजाम बहुत बुरा हो। मैंने चंद दिन पहले भी मिसाल दी है कोलंबस की, पता नहीं वो चला है कि नहीं वो शो हमारा, कि कोलंबस का अंजाम भी बड़ा दर्दनाक था। कोलंबस भी लॉर्ड क्लाइव की तरह था कि आप मकामियों पे जाकर नाजल हो जाएं कॉलोनी की तरह, उनको जानवरों की तरह ट्रीट करें, उनका मालो ज़र उठाकर ले जाएं, जिस तरह बेल्जियन बादशाह ने कॉन्गो में किया था। बेल्जियन किंग हु रॉब्ड कॉन्गो, कि कॉन्गो जहाँ पर सोने की कानें थी, सारा सोना उठा के ले गए। गुर्बत का इस्तारा है वो मुल्क, आज गुर्बत का सिंबल है। तो नाअहली तो फिर कॉन्गो की थी ना। तो इसी तरह मैं कह रहा हूँ ना, अहली तो इंडियंस की थी, कि अगर जहांगीर की जगह कोई तगड़ा बादशाह होता, कहता ओए हु आर यू, कितने लेके जा रहे हो, कि ये तुमने लाइसेंस लिया कंपनी का, तुम कर रहे हो सियासत, ये फौज तुमने क्यों बना ली है छोटी सी? क्यों जी? छोटी सी सिक्योरिटी के लिए है, हमारे इदारे की सिक्योरिटी। फिर थोड़ी देर बाद बड़ी कर ली कि जी चूंकि हमारी फैक्ट्रियां बन रही हैं, अब जगह जगह लुटेरे आ जाते हैं, तो हमें अपना, उसने कहा चलो लगे रहो। ये जो लगे रहो वाला मुहावरा है ना, मेरा ख्याल तब से आया कि लगे रहो मुन्ना भाई। हाँ आपके ख्याल में मुगलों की सबसे बड़ी कमजोरी और खराबी क्या थी? ये जो कंटिन्यूटी में तात्तुल था ना, कोई सिस्टम नहीं था सक्सेशन का। यस एग्जैक्टली। दिस वाज द मेजर रीजन। बाकी बेशुमार रीजंस और हैं, तायुश भी उसमें बहुत बड़ा है, तसाहुल भी उसमें बहुत बड़ा है, लेकिन जो बुनियादी था वो ये था। यस, क्योंकि इंग्लैंड में आप देखें ना, बड़ा बेटा बादशाह बनता है तो फिर भाइयों में लड़ाई नहीं होती। हमारे यहाँ क्या था, भाई आपस में लड़ते थे, बाप को भी कैद कर देते थे, तो इससे बहुत बहुत खराबी पैदा हुई। नहीं तो सर इतने बड़े बेटे का कानून नहीं सी है, था, मौजूद था, लेकिन देखो उसमें रखना अंदाजी कैसे हुई जी कि अब ये छोटे हैं, जी। लेकिन इनकी शादी होगी किसी तगड़े खानदान में, वो चुक देने वाले होते हैं, जी। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं, तुम पागल हो, तुम्हारा तो इस्तेसाल हो रहा है। ये सब कुछ होता रहा यहाँ पे। और आखिरी वक्त तो तौबा तौबा, जब आप अब्दाली का पानीपत देख लें, फिल्म ही देख लें, जी, ऐसे किताब ही। नहीं पढ़ सकते, फिल्म देख लें, फिल्म ही। आप उस फिल्म में, बल्कि फिल्म में जब आप देखते हैं ना कि पूरी फिल्म में जो रांदा दरगाह है, हाँ जी, जिसका बदतरीन हाल है, जिसका तज़किरा भी कोई नहीं करता, वो मुगल बादशाह है। और फिर बहादुर शाह जफर की वो तस्वीर देखा करें, वो जो एक छपी हुई तस्वीर है ना उसकी, हुक्का पी रहे हैं जो, नहीं जी नहीं, जो एक नीम मुर्दा शख्स की तस्वीर के, एक जैसे फिरौन की मम्मी आपको महसूस होती है, वो अच्छा जी। इस तरह का वो बादशाह था और इस तरह का ये ख़ानदान था बेचारा। मुझे भी रिसेंटली इस्लामिक म्यूज़ियम में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पे आज तक के मुसलमानों ने जितनी इजादात की हैं सिर्फ वो थी, फ्रॉम डे वन टिल नाउ। शुरू के मुसलमान दुनिया भर में जहाँ पर भी थे, हर चीज़ ज़मीन से लेके आसमान तक उन्होंने दरियाफ्त कर दी, लेकिन जहाँ मुग़ल एरा आया या इंडियन कोर्ट्स आए, वहाँ पर सिर्फ जवाहरात एंड इस तरह की ब्यूटिफाइंग चीज़ें एंड कारपेट्स एंड ज्वेलरी, बस ये एक ही बड़ा काम हुआ है उस दौर में, के और वो भी एक सेंट्रल एशियन ने जाके वहाँ बैठ के किया, अबू रेहान अलबरूनी। अल-बरूनी, जी, वो भी बाहर से आया हुआ था। महमूद गजनवी ने शायद उससे ये नेकी सरजद हुई थी कि इसको पेटर्नाइज किया, और इसने वो कुछ किया, मारका राइयाँ की, लेकिन ये हिंदुस्तान के नसीब में था। सर होर कोई बड़ा बंदा हिंदुस्तान ने पैदा नहीं किया जी। चाणक्य, कोतलिया कोतलिया बहुत बड़ा राइटर, बड़ा बाकमाल स्टेट्समैन था। और टेक्सला से ताल्लुक था उसका, जी जी, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था वो, लेकिन हम उसको ओन नहीं करते। अब देखें वो भी दुनिया की कदीम तरीन Yes. यूनिवर्सिटीज़ में है, पर नहीं जी, नंबर 1, कदीम तरीन नंबर 1 थी वही पहली। लेकिन हमने कुछ नहीं किया उसको जिंदा रखने में, या उसके टूटे फूटे खंडरात भी क्या, वहाँ पे टीले पड़े हुए हैं, बस किसी ने उसको डिस्कवर करने की कोशिश, क्यों, ये तो पढ़ाई लिखाई की चीज़ है। बल्कि उसमें भी सुना है कि ये लैंड माफिया वाले पहुंच गए हैं वहाँ पे। पहुँच चुके होंगे, बिल्कुल। यानी हमारे पास क्या कुछ नहीं है और हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, चाणक्य को क्यों नहीं ऑन किया हमने?
बस वो कहते हैं जी चूंकि वो नॉन मुस्लिम था, कोई उस वक्त इस्लाम था ही नहीं भाई। बस जिद बनाई हुई है एक तरह से। ये तो कबले मसीह का कैरेक्टर है ਐਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰ? जी, 325 साल कबले मसीह का। 325 ਸਾਲ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੜਦਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀਰਿਆ। मैंने एक दफ़ा अपने एक कोलीग से पूछा, मैंने कहा कि पाकिस्तानी हिंदुओं से इतनी नफ़रत क्यों करते हैं? कहने लगा हिंदू जो है ना अशोका के ज़माने से मुसलमानों पे जुल्म करते आ रहे हैं। मुसलमानों पे जुल्म कर इस्लाम उसके कितने 100 साल बाद आया। अच्छा, मैंने ना ये फेसबुक पे लगा दी तो वो ना ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहते यार ये तुमने क्या किया, फेसबुक पे लगा दी ये बात। मैंने कहा जी आपकी बात इतनी काबिल कदर थी, मैंने कहा लोगों को तक पहुंचनी चाहिए। सर किताब हमारी, हाँ जी, किताब पे फिर ये एक देखे ना, ये इतनी इंटरेस्टिंग है कि इसके ऊपर मुख्तसर गुफ्तगू हो ही नहीं सकती। जी जी ਜੀ फिर कमाल ये है कि उसने एक चीज़ को हाईलाइट किया है कि जो बेरहमी होती है ना, जी उसने रूथलेसनेस का इस्तेमाल किया कि जब आपने अपने पंजे गाड़ने हो तो फिर आप अखलाकियात को पसे पुश्त डाल दें, फिर वो करें जो आपकी रजीम को सूट करता है। वाह और बड़ी बड़ी बेरहमी की गई, शहरियों के साथ वो बदसलूकी की गई ਓਹੋ कि फिर देखते ही देखते हम पहले गुलाम नहीं थे, हालांकि पहले भी कॉलोनिस्ट आते थे यहाँ पे, कॉलोनाइज करने का सिलसिला बहुत पुराना था। इतनी बेरहमी इस खित्ते के साथ या तो आर्या कौम ने की थी या फिर अंग्रेज़ों ने की है। आर्या पे भी बहुत डिबेट है, ख़ास तौर पे इंडिया में। वो तो नहीं मानते कि हाँ, आर्यन वो कहते हैं आर्यन इन्वेजन की जो थ्योरी है वो ये बिल्कुल- गलत है। वो नहीं मानते। तो फिर मेरा ख्याल है लंदन से किसी दिन को उठ के कहे जी ये जो अंग्रेज़ भी आए थे आपके यहाँ ये भी गलत है, ऐसे ही आपको किसी दिन ख्वाब आया होगा। अच्छा, एक दिलचस्प बात जो ज़्यादा अहम है वो ये कि मैं ज़ाती तौर पे एग्री करता हूँ शशि थरूर से कि यहाँ से जो प्लंडर था ना, प्लंडर ऑफ इंडिया, वो उन लोगों ने किया और जो इस्तेसाल किया। लेकिन मैं साथ ही आपसे सवाल करने से पहले ये भी बता रहा हूँ कि मैं इस पे शर्मिंदा भी हूँ, नादिम भी हूँ और एग्री भी करता हूँ कि हम कमज़ोर थे तो हमारे साथ ये सलूक किया। एग्जैक्टली। हम बदनज़मी और बदअमली का मलगूबा थे। लेकिन फिर भी आप अंग्रेज़ के रवैये के बारे में क्या कहते हैं? उस पर काफ़ी मुख्तलिफ आरा हैं। मसलन खुशवंत सिंह जैसे जो लोग थे वो अंग्रेज़ों को बहुत एडमायर करते थे, सर सैयद बहुत एडमायर करते थे। और खुशवंत सिंह का तो ये कहना था कि आप किसी छोटे से छोटे राजे का जाके गराज देख लें, उसके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने उसके पास सर्वेंट्स हैं, और उसका मुकाबला आप वॉइसरॉय से कर लें। तो ये चीज़ें भी हैं। तो सर वो तो फिर उनके हक में वो अपने लिए तो बहुत अच्छे थे, पर हमारे साथ वो क्या था ये हमें खुद रियलाइज करना है। वो तो नहीं कहेंगे कि हम गलत थे। नहीं, जैसे खुशवंत की बात ये कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। खुशवंत के उस जैसे और बहुत से लोगों ने इसको वो कर रखा है कि ये तो छोड़ें कि आप उसका गैराज देखें और उसका फ्लीट देखें, आप ये देखिए कि ये जो मेयो हॉस्पिटल है जी, जो वो ये जो नहरी निज़ाम है, ये जो यूनिवर्सिटियां हैं, ये जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है, आज भी हम उन्हीं पे बैठे हैं बस। आपने क्या किया? आप किस जोग्य थे? कौन सा नहरी निज़ाम है जो आपने बनाया? रेलवे सिस्टम जहां गए सिर्फ सुधारा। यस। हम जहां गए सिर्फ प्लंडर ही किया, चोरी। इनफैक्ट जो चोरियां हमने करनी थी वो बड़े लेवल की वो करके चले गए। उन्होंने कहा होगा जी हमारी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, हम जा रहे हैं तो ये लेके जा रहे हैं। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। नहीं नहीं, जानते नहीं कि चीज़ां पुट के लै गए। हाँ जी। वो शुरू तो ही ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਤੁਹਾਡਾ रॉ मटीरियल, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਟਨ, हर चीज़, ਤੁਹਾਡੀ स्पाइसिस, जो चीज़ां करामद सन इत्थों ਜਾਂਦੀਆਂ रਹੀਆਂ। जैम स्टोन्स ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ और फिर सब तो मदर ऑफ ऑल जैम स्टोन्स कोहिनूर। कोहिनूर तक ले गए ਉਹ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ जी। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੀਰਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ? नहीं, हीरे तो बेशुमार ने, नहीं, लेकिन कोहिनूर दा जेड़ा है। कोहिनूर इहदा ना है ना। अच्छा, ਇਹਦਾ ਨਾਮ। कोहिनूर तो एक ताजमहल इक्को ही है ना। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀ अच्छा। ਤੇ ਇਸ ਲਈ। और इसने डालरिम्पल ने कोहिनूर पे भी एक किताब लिख रखी है, उसमें ये को ऑथर है। को ऑथर है, 2 लिखारियों ने लिखी है। फिर इसने मीर जाफ़र का बड़ा दिलचस्प तज़किरा किया है जी कि मीर जाफ़र उनका सिपह सलार था और वैसे किसी हद तक उसका जो है ना रिएक्शन बनता था कि खिदमत हमने की, इतना तरद्दुद हमने किया, फ़ौज को सुधारा, सेट किया और आपने
नॉमिनेट कर दिया है सिराजुद्दौला को। जो नवाब था उसने सिराजुद्दौला को, जो नालायक भी था और कम उम्र भी था, सिर्फ 23 साल उम्र थी उसकी उस वक्त, और 24 साल की उम्र में उसको कत्ल कर दिया गया, इसलिए कि उसके बस का रोग नहीं था। लीडरशिप क्वालिटीज की बहुत कमी थी जी उनमें। जी। लीडरशिप नहीं थी उसके अंदर। लीडरशिप होती तो ये मामलात को कंट्रोल कर सकता था। हाउएवर जो तरीका मीर जाफर ने अडॉप्ट किया उसमें हसद, लालच और खौफ की बू आती है। ये सारी नेगेटिव चीज़ें, और यही वजह है कि आज भी उसकी हवेली को गद्दार हवेली कहा जाता है। सर नाम ही ਉਹਦਾ ਅੱਜ तक ਆ। और मीर जाफर इस्तारा बन गया, गाली बन गया। जिसने गाली देनी होती मीर जाफर कहता है। जी नहीं जी, क्वेश्चंस की तरफ आ जाए। जी सर, आज का पहला कमेंट आतिफ सुहेल साहब लिखते हैं कि आफ्ताब साहब, खुदारा लठ मार ही चाहिए, लोग जान कर आपको छेड़ते हैं ताकि आप बोलें, आप दिल पर ही ले गए हैं ये बात। अब किसकी बात मानी जाए, आतिफ साहब की या शकील साहब आपकी? नहीं, लठ मार से क्या मुराद, उनको पसंद है ये स्टाइल? वो कह रहे जैसे हैं रूफ क्लासरा ने लिख रखा, आपने पढ़ा है? अच्छा नहीं, वो कहते हैं जी 2 बंदे ऐसे हैं दुनिया में जिन्हें एरोगेंस सूट करती है, एक आफ्ताब साहब और एक हसन निसार साहब। अच्छा, सर एरोगन की एरोगेंस, एरोबंस, एरोगेंस, एरोगंस, रऊनत, रऊनत ਇਹ वो ਕੀ क्या ਹੈ? आकड़। ਅੱਛਾ ਆਕੜ, ਯਾ ਆਕੜ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਕੜ ਐਵੇਂ ਉਹ ਚ ਫਸੇ ਆ ਰਹੂਨੀਅਤ। तो 10 मेरे चाकड़ है। ਸਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਦੱਸ, ਤੁਹਾਡੀ- ਦੱਸ। ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸਰ? नहीं 10 ना। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਰ ਨੀਰੀ ਰਸ ਮਲਾਈ चलो ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਮੱਖਣ ਹੋ ਸਰ, ਤਾਂ ਐ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਖਤ ਬੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਆਕੜ ਕਦੋਂ? अच्छा, ठीक तरह से बताओ, ठीक तरह से। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇ? पुत्र सीढ़ियां दे के कैमरा पे है। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਪੈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਤਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ आपको उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ सच दस दो। ਸੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਾ। नहीं नहीं, बाज़ औक़ात जो है डिसिप्लिन कायम करने के लिए जी, जी। आपको सख्ती करनी पड़ती हाँ, है। डट जाना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप कोई बदमाश हैं या कोई गुंडे हैं। और दूसरा ये कि एरोगेंस जो है, वाकई मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि एक शख्स होता है रिक्लूस, जी विड्रॉन, कि भाई मैंने तो इसमें इस गुफ्तगू में पढ़ना ही, आप लगे रहें यार। तो इसका ये मतलब नहीं वो मुतकब्बर है या वो बड़ी आकड़ वाला कि मैं तो किसी चीज़ समझदा ही कुछ नहीं। वो और तरह का आदमी है। फिर जब उसने एक कंपनी रन करनी हो, और कंपनी भी ਜਿਹੜੀ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਏ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖੜਕਾ ਪਿੜਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਲਾਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ। ਐਰੋਗੈਂਸ नहीं हैगी जी। दौरान प्रोग्राम डॉक्टर साहिबा को मोबाइल इस्तेमाल करने से मना करें, आपकी तौहीन है, इसकी इज्जत है मगर आपसे ज़्यादा नहीं है, सॉरी, वेरी सॉरी, इनको समझाएं। आप इसका जवाब खुद ही दें, मैं भी फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका जवाब यही है कि ये हम, बेशक आप रिकॉर्डेड प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन जब एक पर्सनालिटी चल रही होती है तो इट इज़ एक्चुअली अ लाइव सेशन। तो कसौटी की पर्सनालिटी के दौरान मैं कर रही होती हूँ। तो उस लाइव किसी भी शो को आप देख रहे हो, उसके सामने आईपैड पड़ा हो, उसके सामने कोई भी लैपटॉप पड़ा हो और वो कुछ कर रहा हो, तो दैट्स फाइन। सो दिस इज़ एक्चुअली दैट कि मैं खाली कैमरे के आगे नहीं बैठी, मैं कैमरे के पीछे और पाकिस्तान में बैठी अपनी रिसर्च टीम के साथ साथ टैली कर रही होती हूँ कि जो सवाल वो पूछ रहे हैं या जो चैलेंजर जवाब दे रहा है वो ठीक चल रहा हो। क्योंकि ऑफ कोर्स किसी को नहीं पता होता, वो गैस कर रहे होते हैं, तो उनकी तरफ से आने वाला जवाब हमेशा चेक किया जाता है। डॉक्टर साहब, मैं कुछ गुजारिश कर दूँ? जी। ज़ाहिर है आप कहेंगे कि आप तो डेवल्स एडवोकेट होंगे। आपकी इस बात का ऑडियंस को बिल्कुल इल्म नहीं है कि आपने बात की है, जेन्युइन की है, क्योंकि उस वक्त आप अली हसनैन के साथ हमारे पूरा हमारा कसौटी का एक ग्रुप है, ग्राउंड स्टाफ के साथ, हेड ऑफिस के साथ राब्ते में होती। लेकिन फिर या तो हम नीचे एक टिकर चला दिया करें कि ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर साहिबा इस वक्त जो अर्क रेज़ी कर रही हैं उसका गहरा ताल्लुक़ हमारी शख्सियत और रिसर्च के साथ है, तो प्लीज़ आप माइंड ना कीजिए, वो आपको इग्नोर नहीं कर रही। तो इसलिए चूँकि लोगों को नहीं पता, इसलिए अवॉइड किया करें आप, या फिर एडिटर को चाहिए कि आपका वो शॉट दे ही ना। लेकिन अगर आप मास्टर शॉट में आएंगी तो काम तो कर रही हैं आप, तो साथ साथ आप बता दिया करें कि अच्छा भाई मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रही हूँ, ये ना समझिएगा कि मैं शरीक नहीं हूँ, मेरा एक कान आपकी तरफ है, क्योंकि आप होस्ट हैं। ज़िया शाहिद मरहूम के पास एक साहब आए तो कहने लगे कि सर मेरा तीसरा कॉलम है तो आपने फेंक दिया है,
تو کہتے یار آپ نے، میں نے دیکھا ہے بڑی غیر سنجیدہ سی فضول سی گفتگو کی ہوئی ہے، شاید اس طرح کہہ دیتے ہوتے. کہتے سر میں نے کامیڈی اصل میں وہ لکھی تھی. کہتا اچھا، تو آپ نیکسٹ ٹائم ایک کام کیا کریں، ہر فکرے کے ساتھ لکھ دیا کریں کہ یہ کامیڈی ہے، تاکہ میں اس کو برداشت کر لیا کروں. تو یا تو تو اٹس مائی رسپانسبلٹی کہ میں دونوں میں سے چیلنجر اور ہماری جو ٹیم کر رہی ہوتی ہے، کسوٹی کھیل رہی ہوتی ہے، کسی کو مس لیڈ یا مس گائیڈ نہ ہونے دوں. تو آپ آڈینس کو تو مس لیڈ کر گئی. تو آڈینس ویسے پھر ہمیں ان ادر ورڈ تو آڈینس جائے بھاڑ میں. دس از واٹ یو آر سیئنگ. نو تو پھر میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ہمارے ایڈیٹرز کو اوائڈ کرنا چاہیے کہ واقعی سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ میں بہت زیادہ اس کے اندر ہوتی ہوں کہ آپ آگے نکل چکے ہوتے ہیں اور پچھلا جواب غلط ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں نے اپنے پرسپیکٹیو میں کہا ہے، میں بھی چھوٹا موٹا ہوسٹ ہوں، کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا نا تو میں ساتھ یہ کہتا کہ آپ کنٹینیو کریں، میرا ایک کان آپ کی طرف ہے، میں اس وقت ریسرچ کر رہی ہوں، اور یہ کہہ کر آپ ایڈریس بھی کر سکتی ہیں اپنے ویورز کو، کیونکہ کروڑوں لوگ اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں کہ مے بی کچھ غلط ہو گیا، چلو لیٹس ویٹ اینڈ نہیں، ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے یہ تھوڑے ہیں. لو ٹھیک ہے، ڈسکریٹ کچھ بھی نہیں ایسی کیا. ڈسکریٹ نہ جی ہو. آگے. عثمان شاہ کمنٹ کرتے ہیں کہ آفتاب صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے آپ جو بھی سٹارٹ لیں تو پاکستانی ینگسٹرز کو بھی ضرور یاد رکھیں. یہاں کی یوتھ بہت ڈس اپوائنٹ ہے، خان کی گورنمنٹ تو بنانے نہیں دے رہے، تو یوتھ کو آپ کی سپورٹ کی بھی ضرورت ہے. یو اے ای میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، آپ اس پر ضرور فوکس رکھیں. جی میں فوکسڈ ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے اللہ تعالیٰ اور بڑے در واہ کرے گا، بڑے رستے کھولے گا. اور میں پاکستان میں آتا ہوں نا تو آئی ول ڈو فار اے برج بٹوین دا ٹو، پاکستان بھی، یو اے ای بھی، بلکہ پورا نارتھ امریکہ اینڈ یورپ، ان سب میں یوتھ کے ساتھ ہم. لیکن یوتھ کچھ کرے بھی نا، یوتھ کو تھوڑا سا، یوتھ کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے ان دا فیلڈ آف آئی ٹی. یس آپ مجھے متاثر کر دیں، تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ جی یہ دیکھیں، یہ ہماری اختراع ہے، یہ ہم نے ایک نئی چیز بنائی، یہ ایپ ہے جو ڈیزائن کی ہے، یہ ہم نے کام کیا ہے، ہم نے یہ اینیمیشن کی ہے، یہ کسی بھی طرح ہالی ووڈ کے لیول سے کم نہیں ہے. تو پھر دیکھیں میں پیٹرنائز کرتا ہوں آپ کو کہ نہیں، میں اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا. آگے آپ کی قسمت. وہی جو بھی شکیل صاحب بات کر رہے تھے کہ رٹا ڈگریز کی جگہ ووکیشنل ٹریننگ لیں، جی اسکلڈ کام میں جائیں. سو اور آئی ٹی کی واقعی بہت اپرچونیٹیز ہیں یہاں پہ.